Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So yes, we have started a new chapter which is periodic table and periodicity, and in yesterday's class we have covered 4.1.1 and 4.1.2. All right. So in today's class we are going to study 4.1.4, which is describe the demarcation of the periodic table into S, P, D and F block. Okay. So, but the question arises here that why not 4.1.3? Means we should study 4.1.3 according to the sequence, because this SLO says that determine the group, period and block of an element using its electronic configuration. Means that in this SLO, it says that you have given a electronic configuration and just like this, and from this electronic configuration you have to determine the group number, the period and the block. So that's why I think that you should have the basic knowledge first, which is 4.1.4, in which you are going to study the demarcation of the periodic table. Means you are going to study the different blocks in the periodic table, and then in the 4.1.5 you will study the location of families on the periodic table and their characteristics, their electronic configuration. So then you can easily cover this SLO. Okay, so without wasting time, let's come on the point. Okay, what is demarcation of the periodic table? Demarcation. Demarcation means to divide. Demarcation का मतलब क्या है? डिवाइड करना. तो आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं periodic टेबल में? 118 एलिमेंट्स हैं periodic टेबल में. ठीक है, तो अब हमने क्या ज़रूरत पड़ी थी इसको ऐसे अच्छा खासा अरेंज थे. अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मॉडर्न periodic लॉ में कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो जब हमने एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज कर दिया था, तो फिर क्यों ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, क्यों हमने ये नेमिंग्स की? तो इसी क्वेश्चन का हमने आंसर फाइंड करना है इन टूडेज क्लास. ओके, so we have s block elements. So s block elements, what is the position of s block elements? Located on the left side of the periodic table. तो ये जो आपको लेफ्ट साइड पर जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम एंड हीलियम, ये सब क्या हैं? दीज ऑल आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ये सब क्या है? गैस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. अब देखिए यहाँ पर क्या है? इंक्लूड्स ग्रुप 1 विच इज़ अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 विच इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो आपके पास ये जो फर्स्ट एक ग्रुप है, इसको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स. ओके, अल्कली मेटल्स. और ये जो ग्रुप 2 है, 2A है, इसको क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन अर्थ मेटल. ओके, अच्छा. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. इफ समवन आस्क यू व्हाट आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो व्हाट विल यू से? अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हाइड्रोजन एंड हीलियम. Okay, so what was the question in the very start, that why this block is known as s block? क्यों कहते हैं भाई s block elements है, तो इसको s block क्यों कहते हैं? क्योंकि the valence electrons, outermost electrons enter the s orbital. क्योंकि इनके पास जो outermost electron है वो कौन से ऑर्बिटल में या कौन से सबशेल में एंटर करता है? s सबशेल में. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? s block element. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्या है यहाँ पे देखिए सोडियम, तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11. ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम? 1s, 2s, 2p. ओके, so and 3s also. So 1, no, 2, 2, 6. As we know that in the s subshell we can only fill 2 electrons, and in the p subshell we can only fill 6 electrons. So 6, 2 plus 2, 10 electrons, and remaining in the s block elements we have fill 1 electrons. Means that the outermost electrons enters into the s subshell. That's why these elements are known as the s block elements.
ओके, एस ब्लॉक elements, s block elements, because last electron enters into the, or the outermost electron enters into the s s subshell. Okay, now the general electronic configuration of these elements are ns1, ns1 to ns2. ओके, इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो ग्रुप 1a है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS1। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या शो करती है, ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो NS1 देखें आपके पास इसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, वो 1 ही होगी ना, NS1, क्योंकि आपको पता है कि 1A ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है कि विच शोज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इनके पास NS1 होगा। अब N किसको शो करता है, आपके पास नंबर ऑफ पीरियड को, कि अगर आपके पास फर्स्ट पीरियड है तो जिस इन द केस ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s1, अगर आपके पास लिथियम है तो 2s1, सोडियम है तो 3s1, पोटेशियम है तो 4s1, इस तरह से। और यही अगर आपके पास क्या है सेकेंड ए ग्रुप है तो उसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, NS2। ठीक है, NS2 होगी तो यहाँ पे ये N क्या है आपके पास 2, यहाँ पे क्या होगा 3, मीन्स N चेंज होता रहेगा अगर आप क्या करेंगे इन टू द मूव करेंगे ग्रुप में। लेकिन जो आउटर मोस्ट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपके पास यही रहेगी 2 and 1। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, NS1 to NS2। अच्छा, अब ये क्या है, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अच्छा, अब देखें इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके पास मेटल्स हैं एंड नॉन मेटल्स भी हैं। मेजोरिटी में आपके पास ये सब क्या है, ये सब मेटल्स हैं। ये क्या है, ये मेटल्स हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, बिकॉज दीज आर द नॉन मेटल्स। तो आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट में, एस ब्लॉक में कौन कौन से नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल इसमें कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये आपके पास नॉन मेटल हैं। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सब क्या है, वो मेटल्स हैं। ओके, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अभी आपको बताया था लास्ट जो हमने पढ़ा था कि ये ऐसे आपके पास मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मीन्स इसको आप जब जब वाटर में डालोगे तो एक्सप्लोजन होगा। तो दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स पोजीशन क्या है, फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहाँ मिलते हैं आपको ये, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दिस इज द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये क्या है, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आपको ये जो जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे ये सब क्या होंगे, दीज बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम आपको पता है कि कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक से। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इंक्लूड्स ग्रुप 13 to 18 एक्सेप्ट हीलियम, ये अभी हमने देखा। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सब क्या है आपके पास, ये हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, आप इसको 13 कह लें या 3A कह लें, एक ही बात है। अगर यहाँ पे मैं 3A लिख दूँ, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 13 कह दें, 14, 15, यहाँ पे 3A, 4A, 5A, 6A, 7A। ओके, नाउ why we called these elements as p block element, because the valence electrons enter the p orbital or the p subshell, क्योंकि यहाँ पर भी जो आपके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ब्लॉक में इंटर करता है, इसलिए हम इसको इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, हम किसकी एग्जाम्पल यहाँ से देखें, ये अगर हम ले लें नाइट्रोजन की एग्जाम्पल। ओके, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, पहले देखें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s, 2s, 2p, 2s में 2s में, तो टोटल कितने हो गए 4। सो रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए 3, 3, 2 एंड 2, 7। तो यहाँ पर देखें कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कौन से सबशेल में इंटर कर रहे हैं, पी सबशेल में। तो
इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अच्छा अब यहाँ पर पहले अब हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, NS2 to NP126 मीन्स कि आपके पास S2 से स्टार्ट होंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, और इसके अलावा NP126 मीन्स कि या तो 1 होगा या 6 होगा। अब फॉर एग्जांपल देखें इस तरह से, अगर मैं, ये है आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जैसे आपके पास क्या है, अगर मैं इस तरह से ग्रुप में मूव करूं तो इस तरह, सॉरी उसमें पीरियड में, तो क्या होगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो अब यहाँ पर क्या होगी इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, देखिए बोरोन का यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर 5 है, तो पहले एस में 2 आ गए, ठीक है। अब इस ये कहलाता है आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये क्या है, ये इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो आपको फॉर्मूला बताया है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा था, NS2, तो NS2 है सब में, जी है। और P में क्या था, NP विच इज़ 1 to 6, कुछ भी हो सकता है। अगर देखें यहाँ पे इन द केस ऑफ बोरोन तो P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। इन द केस ऑफ कार्बन P में कितने हैं, 2। इन द केस ऑफ नाइट्रोजन P में कितने हैं, 3। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन P में कितने हैं, 4। इन द केस ऑफ फ्लोरीन P में कितने हैं, 5। एंड इन द केस ऑफ नियोन P में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो इस तरह से NS2 से लेके आपके पास NP1 to 6 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। This is the general electronic configuration for the p block elements. Okay, next major point is that includes metals, non metals and metalloids. तो आपके पास p block elements में वेरिएशन होती है, इसमें आपको metals भी मिलते हैं, इसमें आपको non metals भी मिलते हैं, इसमें आपको metalloids भी मिलते हैं। अब what are the non metals, what are metals, what are metalloids, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मेटल क्या है, metals are the elements on the periodic table that are usually hard होते हैं, shiny होते हैं, easily conduct करते हैं क्या, heat and electricity। तो metals are those which conduct क्या करते हैं, conduct heat and electricity। okay, दे आर डक्टाइल, डक्टाइल है मीन्स कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स, आप इनको वायर में ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, जैसे ये क्या है, इस तरह से आप इनको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से, ये देखो ये भी क्या है, ये वायर्स हैं। देन मेलेबल, मेलेबल का मतलब ये होता है कि यू कैन ड्रॉन इनटू शीट्स, शीट्स में आप इसको चेंज कर सकते हो, विच मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स एंड वायर्स। डक्टाइल मीन्स to drawn into the wires and malleable means to converts into the sheets। okay, अच्छा अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आपके पास मेटल्स क्या हैं, आपके पास जितने भी s ग्रुप एलिमेंट हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये सब क्या हैं, ये मेटल्स हैं। ये पीरियोडिक टेबल में ये सब ये क्या है, दीज ऑल आर द मेटल, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन एर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। फिर आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सब क्या हैं, ये सब मेटल्स हैं। तो इस तरह से अगर आप ऑब्जर्व करें तो 78% ऑफ द प्रोडक्ट टेबल क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ द मेटल्स। तो 78% आपके पास जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें कितने उसमें वो मेटल्स हैं। ओके, देयर आर अराउंड 94 मेटल्स ऑन द प्रोडक्ट टेबल, कितने हैं आपके पास मेटल्स हैं प्रोडक्ट टेबल में, 94। दिस मीन्स दैट अराउंड 78% ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट टेबल आर मेटल्स। तो मीन्स 78% जो है प्रोडक्ट टेबल में वो सब क्या है, वो मेटल है। कहते हैं कि नॉन मेटल्स क्या हैं, ये आपके पास नॉन मेटल्स है ऑन द राइट हैंड साइड। और मेटलोइड्स क्या होते हैं, ये जो जिगजैग, ये जो आपके पास ये जिगजैग अरेंजमेंट में आपके पास प्रेजेंट है, दीज आर द मेटलोइड्स। and so let's come on the metals। as I told you the metals are ductile, metals are malleable, तो malleable हैं, ductile हैं, ये yes you can see here the different designs which are drawn from the metal। तो ये सब क्या है, ये metals है ना, जैसे different different designs बनाए हुए हैं। देखिए ये क्या है, wires, ये देन ये आपके पास different home decorative items हैं यहाँ,
देन हेयर डिफरेंट रिंग्स, डिफरेंट पेंडेंट्स। आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड के भी देखिए, गोल्ड भी है क्या, वो है तो आपके पास मेटल ही ना, तो मेटल आपके पास डिफरेंट डिजाइन में आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके ना, व्हाट आर द नॉन मेटल्स? तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या है, ये कंडक्ट ही नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ना तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ना ही हीट को कंडक्ट करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे देखें जैसे कि प्लास्टिक है, तो क्या प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? नहीं करती ना। या वुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? नहीं करती। अच्छा, वो आपके पास क्या थे, शाइनी थे। ये आपके पास कैसे, सॉफ्ट एंड डल। नॉन लस्ट्रस सरफेस, बिल्कुल ये इनकी कोई उनकी ऐसे उनकी सरफेस कैसी थी, लस्ट्रस थी, मीन्स शाइन वाली थी। इनकी सरफेस शाइन नहीं होती। ये तो आपके पास नॉर्मली पाउडर फॉर्म में होते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब जैसे आपके पास क्या है, HCl, तो HCl आपके पास लिक्विड है ना, तो हाइड्रोजन विच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास डिफरेंट पाउडर्स की फॉर्म में होते हैं ये नॉन मेटल्स। अच्छा, फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल, कहाँ मिलते हैं आपको, राइट साइड पर। तो ये सब क्या है, दीज आर द नॉन मेटल्स। अच्छा, आपने याद भी करना है अब यहाँ पे कौन कौन से, ये वाले, ये क्या है, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस क्या है आपके पास, ये नोबल गैसेस ये है आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। फिर उसके बाद आपके पास नोबल गैसेस, ठीक है, ये दिस वन नोबल गैसेस। एंड देन आपके पास हैलोजन, तो हैलोजन भी इसमें ही आते हैं, किसमें, जितने भी हैलोजेंस हैं कम्स इन द नॉन मेटल्स। और फिर आपके पास क्या बचता है पीछे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कार्बन। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, ये भी नॉन मेटल्स हैं। सो हेयर आर टोटल 18 नॉन मेटल्स ऑन द प्रोडिक्ट टेबल। तो प्रोडिक्ट टेबल में कितने नॉन मेटल्स हैं, 18। अच्छा, अब आपने याद कैसे रखना है, अब देखिए मेटल्स तो इजी है ना, आप याद कर लेंगे। नॉन मेटल्स में आप हेलोजन तक इजीली याद कर लेंगे। आपको पता है कि हेलोजेंस क्या है, ये आपके पास नॉन मेटल्स हैं। आपको पता है कि आपके पास नोबल गैसेस क्या है, ये भी नॉन मेटल्स है। तो आप जो हैं वो इजीली याद कर लेंगे, ये तो आपको याद हो जाएंगी। बट इसके अलावा जो रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स रह गए हैं उनको आप कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए आपके पास क्या निमोनिक्स हैं। अच्छा, निमोनिक नंबर 1, ये क्या है, नंबर 1 निमोनिक, थोड़ा सा बोरिंग है बट यही है, हंग्री कैट्स, हंग्री कैट्स नीड्स ओनली प्रिटी सॉफ्ट सैंडविचेस, है ना। हंग्री कैट्स नीड ओनली प्रिटी सॉफ्ट सैंडविचेस। तो हंग्री मीन्स के हाइड्रोजन, कैट मीन्स कार्बन, her need means nitrogen, only O shows oxygen, pretty P shows phosphorus, soft S shows sulfur and sandwiches S shows the selenium। ठीक है, I know that is quite boring, कोई याद नहीं करेगा इसको, तो फिर ये वाला याद कर ले। हादी चोर ने उगते प्याज सब सेल कर दिए। हादी क्या है, उसको हमने चोर बना दिया, ठीक है, और फिर उसने इतना ज़्यादा, इतना बड़ा चोर है कि उसने मतलब अभी प्याज उगे भी नहीं थे, तो उगते प्याज को ही उन्होंने उसने सेल कर दिया, है ना। तो फिर ऐसा याद कर ले, हादी चोर ने उगते प्याज सब सेल कर दिए। हादी चोर ने उगते प्याज सब सेल कर दिए। इतना बड़ा चोर है हादी कि अभी प्याज को उसने ग्रो भी नहीं होने दिया, अभी उग ही रहे थे कि उसको सेल कर दिया। हादी चोर ने उगते प्याज सब सेल कर दिए। तो हेयर हादी शोज हाइड्रोजन, चोर मीन्स कार्बन, हेयर नेम मीन्स नाइट्रोजन, ओ शोज ऑक्सीजन, पी शोज फॉस्फोरस, सल्फर एंड सेलेनियम। ठीक है, ये तो बेचारा हमने 2 वर्ड्स ऐसे ऐड कर दिए ताकि हमारा अच्छा सेंटेंस बन जाए। तो हाउ टू मेमोराइज नॉन मेटल्स, दिस इज द ट्रिक। तो आपने चाहे ऐसे याद कर लो या चाहे ऐसे याद कर लो, बट आपने क्या याद करने हैं, क्या, नॉन मेटल्स। ओके, हेयर आई हैव अ वीडियो फॉर द नॉन मेटल्स एज वेल। अब यहाँ पर देखिए कि आपके पास जो मेटल्स हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, राइट हैंड साइड पे, और जो नॉन मेटल्स हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, आपके पास नॉन मेटल्स राइट साइड पे और जो मेटल्स हैं वो लेफ्ट साइड पे। ओके, अब एग्जांपल्स क्या हैं, कॉपर, आयरन, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, ये सब किसकी एग्जांपल है, मेटल की। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा आई डोंट नो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है चलने में।
तो यस, कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो मेटल्स क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, डल। मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, नॉन मेटल्स की कैसी डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी। मेटल्स कैसे हैं, मेलेबल एंड डक्टाइल, और नॉन मेटल्स कैसे हैं, ब्रिटल हैं। ब्रिटल मतलब अगर आप इनको शीट्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये टूट जाएंगे, लेकिन मेटल्स को आप डिफरेंट शीट्स में, डिफरेंट वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट था कि मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो फिर ऐसा क्या है कि भाई आपके पास देखिए वो भी एलिमेंट्स है, वो भी एलिमेंट्स है, लेकिन मेटल्स में ऐसा क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं, और आपके पास जो नॉन मेटल्स है वो नहीं करते। तो यहाँ पर ये देखें, इसमें क्या होता है, मेटल में इस तरह से डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैन यू सी हियर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए ये मूव कर रहे हैं ना, अपनी पोजीशन से मूव करते हैं इस तरह से, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड होते हैं। अच्छा, डीलोकलाइज्ड होते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ, जस्ट ऑब्जर्व द वीडियो फर्स्ट। इसीलिए देखिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे अगेन यू कैन सी हियर, दे आर ग्लाइडिंग ओवर ईच अदर। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्यों होते हैं आपके पास मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। वाई होता है, क्यों ऐसा, क्योंकि इनके पास आप यहाँ पे देखेंगे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव, और इनके आउटरमोस्ट शेल में आपको, मैं सिर्फ यहाँ पे आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रॉ कर रही हूँ, तो इस तरह से वो क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास अल्कली मेटल्स हैं, तो उसके आउटरमोस्ट शेल में एक 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्योंकि इनके पास 1 है, या 2 है, या 3 है, तो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो इस तरह से डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। जब वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं तो इस तरह से वो मूवमेंट शो करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ कोई कैरियर होना चाहिए ना, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से फिर वो क्या करते हैं कि एनर्जी मूव करती है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट होती है, बट नॉट मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अच्छा, यही वजह होती है कि आपके पास, अच्छा यहाँ पर भी जैसे ये एलिमेंट्स है, तो इनके पास भी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ग्लाइड भी करते हैं। ये एक लेयर होगी आपके पास, ये दूसरी लेयर हो गई ना। तो शीट्स में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड हो जाते हैं। अभी आपने देखा भी था कि वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड हो जाते हैं, इसलिए उनको आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अब क्या रह गया, मेटलोइड्स। तो मेटलोइड्स, ये आपके पास क्या है, दीज ऑल आर द मेटलोइड्स। ये जो जिगजैग मैनर में आपके पास हैं, ये सब क्या हैं, ये मेटलोइड्स हैं। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम। ठीक है, so shows what are the metalloids, shows properties of both metals and non metals, क्योंकि they are found in between the metals and non metals, so that's why they shows the properties of both, दोनों की properties show करते हैं। और लेकिन वो कंप्लीटली प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, लाइक अगर ये मेटल्स की तरह हैं, तो ये फिर क्या करते हैं, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो ये भी करते हैं, लेकिन इतनी नहीं करते जितनी कि मेटल्स करते हैं। अब देखिए नॉन मेटल्स तो बिल्कुल नहीं करते ना, और मेटल्स कंडक्ट करते हैं। तो बोरोन, ये आपके पास जैसे बोरोन है या सिलिकॉन है, ये आपके पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट उतनी कंडक्टेंस नहीं होती जितनी कि मेटल्स की होती है। ठीक है, अब ये आपके पास देखिए मेटल्स की तरह शाइनी हो सकते हैं, लेकिन ये नॉन मेटल्स की तरह ब्रिटल भी हैं। ब्रिटल भी है मतलब अगर आप इनको शीट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये टूट जाते हैं। कैन बी सेमी कंडक्टर, अच्छा, कंडक्टिविटी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अभी ये पॉइंट बताया था कि इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, ना तो ये मेटल्स की तरह हाईली इनकी कंडक्टिविटी होती है, और ना ही नॉन मेटल्स की तरह बिल्कुल ऐसा के कंडक्ट ही नहीं करें। और इसमें एग्जांपल्स क्या आपके पास आती है, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक। आपने याद रखना है इन मेटलोइड्स के नेम्स भी। अब इसके लिए आपने नेमोनिक्स बनाना है, और फिर मुझे भी बताना है, लेकिन नेमोनिक्स आपने खुद क्रिएट करना है और इनको याद करना है इन नेम्स को।
ओके अब हमारे पास क्या बचा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पोजीशन क्या है, लोकेटेड कहाँ पे है, इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये आपके पास ये देखें, ये इन द मिडल। अब ये भी देखें, एक तरह से ये मेटल्स हैं और एक तरह से ये सब नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो एस एस ब्लॉक कहाँ पाया जाता है, बिटवीन द एस एंड पी। इसकी इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों, बिकॉज दे आर फाइंड बिटवीन द एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ट्रांजिशन हो रहा है एस टू पी, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और क्या है इसके बारे में जी, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने याद करनी है, n-1। देखें n-1 विच इज 1 to 10, ठीक है। ये डी आएगा यहाँ पे, क्योंकि डी ब्लॉक में इंटर हो रहे हैं इसलिए। एन एस जिसमें कि आपके पास जो है 0 to 2 आते हैं आपके पास, इतने इसमें आ सकते हैं, बट इसमें 1 लिखे ना, 1 to 2 आएंगे, 0 to 2 इसमें क्यों आएंगे, 1 to 2 यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 to 2, क्योंकि एस में 2 ही आ सकते हैं, या 1 या 2। ओके अब देखें इसकी फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इसको ले लें, आपके पास क्या है, ये स्कैंडियम है, ठीक है। तो स्कैंडियम का आपके पास एटॉमिक नंबर है 21। तो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना है, 21। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड 4s, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, दो इसमें आ गए, दो एंड 6 इसमें आ गए, तो ये टोटल कितने हो गए, 10। फिर 2 इसमें आ गए, 6 इसमें आ गए, बाकी आपके पास ये कितने हो गए, 18 हो गए, और रिमेनिंग कितने बचे आपके पास, 3। तो 2 इसमें आ जाएंगे और एक इसमें आ जाएगा, क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल किस में इंटर हो रहा है, डी सब शेल में। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू द डी ब्लॉक, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स enters into the d block element, enters into d subshell. That's why these elements are known as the d block elements. Okay. अच्छा, इसमें सब आपको मेटल्स ही मिलेंगे, इसमें आपको नॉन मेटल्स नहीं मिलेंगे। ओके द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंटर द डी ऑर्बिटल ऑफ द सेकंड लास्ट शेल, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम कलर्ड कंपाउंड्स एंड एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। इसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एज अ आपको गुड कैटलिस्ट के तौर पे मिलते हैं, और उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे कि आपके पास ये क्या है, आप आयरन है, कॉपर है, जिंक है, निकल है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके देन यू हैव एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है, प्लेस बिलो द मेन पीरियोडिक टेबल इन 2 सेपरेट रोज। तो ये आपके पास ये जो आपके पास सेपरेटली आपको फिल ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर नोन एज द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके अच्छा, अब इनको आप इसमें आपके पास देखिए लेंथिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आते हैं। इसको आप ये जो पहला आपके पास रो है इसको कहते हैं लेंथिनाइड, और जो सेकंड रो है इसको कहते हैं एक्टिनाइड। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी याद कर लें, n-2। एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं, 1 to 14, ठीक है। एंड देन इसमें भी आप डी में जो है वो आप कर सकते हैं 0 to 1, और फिर NS2 में आप कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं। ओके दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आपने याद क्या रखना है इसमें से, क्योंकि आपने याद ये रखना है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाते हैं एफ ऑर्बिटल में, तो दैट्स वाई आप इसको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये मोस्टली मेटल्स हैं लेकिन कैसे मेटल्स हैं, रेडियो एक्टिव हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं, जैसे कि सीरम है, यूरेनियम है, थोरियम है। ओके so today we have covered the demarcation of the periodic table, so let's summarize what we have studied today. तो पहले हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ लिया है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़े हमने, ठीक है। देन फिर हमने पढ़ा ये आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, these all are the p block elements, these are the d block elements and these are the f block element, d block element। एस ब्लॉक एलिमेंट में आपके पास कौन कौन से ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये आपके पास आ जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट में। पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या आता है, अच्छा यहाँ पे आपके पास 13 टू ग्रुप नंबर 1 ए 2 ए 3 टू आपके पास जो 12 है,
ये आपके पास क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 12 ये आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में है। देन ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 ये आपके पास क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फ्रॉम विच ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। तो और ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 ये आपके पास क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। एंड रिमेनिंग आपके पास जो 2 रोज इस तरह से लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, लेंथी नाइट्स एंड एक्टिनाइड्स ये आपके पास किस में आते हैं, लेंथीनाइड्स ये और एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स ये किस में आते हैं, ये भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। अच्छा, इनका नाम हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्यों रखा, क्योंकि इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर तो एस ब्लॉक में इंटर करता है तो हम एस ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक में इंटर करता है, पी ब्लॉक में नहीं, एस सबशेल में, एस सबशेल में इंटर करता है तो एस ब्लॉक कहते हैं, पी सबशेल में इंटर करेगा तो पी ब्लॉक, अगर डी सबशेल में तो डी ब्लॉक, और इसी तरह से अगर एफ सबशेल में इंटर करता है तो उसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।